Hello all. This is Danish and today I am going to discuss about citizenship as per the Constitution of India. So citizenship is a very important topic from the UPSC perspective or also as per the general awareness, because we should know what are the circumstances, what are the situations that has been mentioned in the Constitution regarding the citizenship of India. So let's start our topic. The first and foremost thing is that the citizenship provision has been given in the part 2 of the Indian Constitution, which comprises of articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. These articles will deal with the citizenships as per the Constitution of India. Okay sir, what to expect from this lecture? So basically by the end of this lecture you will be able to understand the difference between the term like citizens, who are aliens, who are ordinary residents, who are domicile, who are person in general, that has been used in the Constitution and the other statutory provisions in our country. Also we will discuss about what is single citizenship and what is dual citizenship. L is missing over here. Dual citizenship. Also the Constitution speaks primarily about the citizenship that has been provided on the eve of independence. इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस की बात की गई है जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 26 जनवरी 1950, उससे पहले तक के जितने भी प्रोविज़न हैं रिगार्डिंग द सिटीजनशिप सिर्फ उसके बारे में ही बताया गया है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में. तो सर उसके बाद के बारे में कहाँ डील किया गया है? उसके बाद के बारे में डील किया गया है, हमको पावर दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को. The Parliament of India has been empowered to make laws in that respect, and accordingly, in 1955, Indian Parliament has passed an act called the Citizenship Amendment Act, Citizenship Act of 1955. This is a very important act, and time and again, so many of the amendments have been done in this act to actually cater to the need of the situation. So we will discuss in detail about these things also. Also we will discuss about the constitutional provisions for the citizenships, what has been provided in the Constitution. We will discuss in detail about the Citizenship Act of 1955 and the OCI, that is the Overseas Citizen of India, and the NRI. What are they and what are they used for? So let's start our topic. First of all, let's have a broad idea about the citizenship concept. How does it came into existence? So historically, when we talk about the citizens, were those people in the ancient Romans and the Greeks who were entitled to certain privileges. What were those privileges? They had some property rights, they had some right to vote and all those things. But these things got evolved with time, and the present time nation states have defined citizenship as a subscription to a nation. What does it means? Then when we become a citizen of a country, we become a full-fledged member of the nation. ओके सर, बन गए हम मेंबर. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द नेशन will provide certain rights and freedoms, and that too a guaranteed rights and freedoms, and in return it will expect to perform some of the duties which are being inscribed in the fundamental duties in the Constitution of India. Okay sir, so what type of rights are we expected to have as a citizen of India? Though these are some of the like the civil rights, the social rights and the political right. What does it imply? In the civil component, it implies that we have right to freedom of liberty, right to speak, right to move freely. All these things are part of civil rights. What comes under the social rights? Social rights means rights which are like for the welfare of the nation, welfare of the people of the nation. These rights are said to be the social rights, like the equal pay for the equal wages, And similarly, the political rights means the right to participate in the election and to choose our representatives. It depends upon what is the nature of the election in the country. In our country, in India, we have a representation system, that is, we choose our representative and send it to the parliament.
Also, it is not that all the people in the world that exist have a citizenship of some country or the other. Some people are not the citizen of any of the country of the world. वो किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं. In that case हम लोग उनको या तो रिफ्यूजी बोलते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स बोलते हैं, और उनको बहुत ही बेसिक जो राइट्स होते हैं वो डिनाइड होते हैं, जो कि होता है राइट टू लिव, राइट टू वर्क एंड अदर्स. ये प्रॉब्लम आज के टाइम में जब सिविल स्ट्राइफ और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वर्ल्ड ओवर देखने को मिलती है, तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारे यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, एक अपॉइंट किया हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज़. ओके सर, ये तो रिलेशनशिप हुआ बिटवीन द नेशन एंड द पीपल रिसाइडिंग इन द कंट्री. इज़ दैट ऑल अबाउट सिटीजनशिप? नो, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सिटीजनशिप रिलेशनशिप. जैसे अगर हम लोग, बहुत सारे लोग एक कंट्री में रहते हैं, हम सब अगर एक सिटीजन्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे के राइट्स को भी रेस्पेक्ट करते हैं और एक हारमोनियस और एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी को बिल्ड करने में मदद करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप. नाउ लेट्स सी फर्दर. तो बहुत सारे जगह पे क्या हुआ, हम लोग पूरे वर्ल्ड ओवर में हम लोग सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप. लेकिन चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, वी कैन नॉट एकोमोडेट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी, द बेसिक फैसिलिटी. तो इस सिचुएशन में अपने अपने स्टैट्यूट में हम लोग कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं. वी फिक्स द क्राइटेरिया. In our case, initially it was given in the Constitution, and then after by Act of 1955, we have put this criteria कि who shall be the citizen and who cannot be the citizen of the country. अब इसमें क्या है, हम लोगों का कंट्री का सबसे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. इन what sense we can say that? जैसे कि हम लोगों का हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं तो we have been providing refuge to people persecuted all over the country. Our greatest example that we know is the Dalai Lama and his follower in 1959, whom we gave shelter. And also in the northeastern part of the country, there are huge influx of the people residing in the country. But due to constraint in the resources and some of the intuitions about the mishappenings, we are actually apprehensive about providing the citizenship to all of these members. Now sir, what is the idea of global citizenship? When we see that when a disaster or when some pandemic like the COVID-19 or some of the instability happens, whole of the world unite to act for that rebuilding of the same or help together to help each other. Like the HADR that you know about, that is Humanitarian Assistance Disaster Relief Funds. And some of the actions that we take, like the Operation Vanilla that we took in the Madagascar, it was for the rehabilitation after the cyclone and the flood in the Madagascar island. So these type of things show that whole of the world, not only the country, is united, and all of the connectedness shows there is a sense of global citizenship. Okay sir, then what is alien sir? Who are aliens? Any people who are not our citizens, who do not belong to our country, are aliens. And broadly we have two types of aliens. One is the friendly alien and the another one is enemy alien. ओके सर, तो फ्रेंडली एलियन का मतलब क्या होता है, ऐसे कंट्री को बिलोंग करते हैं जिस कंट्री से हमारे पास कोर्डियल रिलेशन होता है. एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिक्लेयर्ड वॉर है. कीप दिस वर्ड इन माइंड कि डिक्लेयर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसको डिक्लेयर करते हैं जब वॉर. इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एनिमी एलियन. ओके सर, तो कुछ प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आगे भी देखेंगे वो दिए गए हैं, कुछ एलियंस को दिए गए हैं और कुछ प्राइमरीली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जैसे हम लोग जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, जैसे 15 में बोलते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये सब जो है वो प्रोवाइडेड है ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल में आपको टर्म देखने को मिलेगा सिटीजन्स. और बाकी जैसे इक्वलिटी की राइट की बात करते हैं 14 आर्टिकल की बात, तो इसमें मेंशन किया गया है टर्म पर्सन. व्हाट डज इट इम्प्लाई कि इसमें आपको सिटीजन होने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी भी नेशनलिटी का आदमी अगर इंडिया में रह रहा है तो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वलिटी का प्रोविज़न वो एप्लीकेबल होगा उसके लिए.
राइट। सिमिलरली जैसे राइट टू वोट है, वो प्राइमरीली अपने सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही होता है। राइट टू कंटेस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सब हमारे सिर्फ और सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं। ओके सर, अब आगे देखते हैं सर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल और डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एक्सप्लिसिटली ये डिफाइन करता है कि इंडिया इज़ हैविंग अ सिंगल सिटीजनशिप। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे ऊपर में एक सेंटर होता है और नीचे में स्टेट्स होते हैं। लेकिन जब हम बात सिटीजनशिप की करते हैं तो वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज़ वी सब्सक्राइब टू और वी आर सिटीजन फॉर टू द सेंटर एंड वी शो एलिजियंस ओनली टू द सेंटर एंड नॉट टू द स्टेट्स। अनलाइक द स्टेट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे जो यूनियन होता है, जो सेंटर होता है और जो स्टेट्स होते हैं, डुअल सिटीजनशिप होने के कारण एक पर्टिकुलर मेंबर का एक यूनियन से भी एलिजियंस होता है और एक स्टेट से भी एलिजियंस होता है। दीज टाइप्स ऑफ कंट्रीज एक्चुअली शो डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो और भी एग्जांपल जैसे यूएसए के साथ साथ स्विट्जरलैंड भी होता है, जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलते हैं। ओके सर, अब आगे देखिए कि इंडिया में अगर सिंगल सिटीजनशिप है और यूएसए में अगर डुअल सिटीजनशिप है तो ब्रॉडली इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया का अगर एक नागरिक है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेट में वह रह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ उस सब पे एक ही तरह से होगा इन द सिमिलर मैनर। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ हो सकता है स्टेट्स अपने अपने हिसाब से लॉज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉमनैलिटी नहीं होगा, है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविजंस कम हैं और कुछ प्रोविजंस अगर बनाए भी गए हैं तो दीज आर एक्सेप्शनल प्रोविजंस दैट आर टू एक्चुअली अचीव द मोटो ऑफ इक्विटी, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, वो बाद में हम लोग आर्टिकल 14 जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी। ओके सर, अब एक प्रोविज़न जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए था कि जम्मू एंड कश्मीर के पास पावर था कि वो अपना इंडियन पीनल कोड बना सकते थे, वो अपने प्रोविज़न्स बना सकते थे, वो अपना रेजिडेंस राइट्स बना सकते थे। लेकिन आज के टाइम में देखने को मिलता है कि 2019 में जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, उसके बाद से उस पर भी सेम लॉ एप्लीकेबल होते हैं जो हमारे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। ओके सर, ये हुआ कॉन्सेप्ट सिंगल एंड डुअल सिटीजनशिप का। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बात करता है। तो वन बाय वन आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से पहले होने वाले सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। ओके सर, ओनली ठीक। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि 1955 में अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और उसी एक्ट के थ्रू अब आज के टाइम में प्रेजेंटली सिटीजनशिप गवर्न होता है। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द सिटीजनशिप, दैट इज आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़िए आप। यहाँ पे लिखा है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अपने ही कंट्री में जन्म लिया हो, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई माता पिता से कोई भी एक अगर इंडियन टेरिटरी में बॉर्न किया हो, या हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब वही 1950, इससे पहले शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो बात की गई है वो बेस्ड ऑन डोमिसाइल है। मार्क दिस वर्ड, है ना, कि सबसे पहला प्रोविज़न डोमिसाइल के बारे में बात करता है। और इसमें जो डेट है वो याद रखना है कि 1950 से 5 साल पहले तक अगर कोई ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा था, उसके माता पिता में से कोई एक अगर यहाँ पे रिसाइड कर रहे थे, और तो उस केस में वो ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा। ओके सर, ठीक है। अगला प्रोविज़न क्या है सर, आर्टिकल 6 में जब भी आप पूरा एक्ट को पढ़ेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 5, अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग द पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब? सबसे पहली बार कि ही इज़ आइदर ऑफ द पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, या तो उनके दादा परदादा या उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में जन्म लिए हों। दूसरा, इन द केस वेयर सच पर्सन सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th day ऑफ जुलाई, है ना, 19 जुलाई 1948
1948 इससे पहले अगर माइग्रेट किए हैं और उसके बाद माइग्रेट किए हैं, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे एक टाइमलाइन बना के, ठीक है। In the case where such person so migrated on or after the 19th of July has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him therefore to such officer before the commencement of the constitution in the form and the manner prescribed by the government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident of the territory of India। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट में बात की गई है कि अगर माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट, 19th of July 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर माइग्रेशन हुआ है पाकिस्तान से इंडिया में, और अगर वो उस टाइम से लगातार ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में, तो वो सिटीजनशिप पा सकता है इंडिया का, ठीक है, ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएगा। अगर सर ऐसा हो जाए कि कोई 19 जुलाई 1948 के बाद अगर माइग्रेट किया हो पाकिस्तान से इंडिया में, तो क्या होगा, उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीने पहले तक उसको ऑर्डिनरीली रिसाइड करना पड़ेगा इन दी कंट्री, तब वो सिटीजनशिप पा सकता है इंडिया का। ओके सर, सिंप्लीफाइड। चलिए आगे, अब देखते हैं आर्टिकल 7। तो जस्ट अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि पाकिस्तान से जब माइग्रेशन हो रहा था इंडिया में, आर्टिकल 7 बेसिकली डील्स विद कि कोई इंडिया से पाकिस्तान गया और वापस से पाकिस्तान से इंडिया आने का इंटेंशन रखता है या इंडिया में आता है, तो सर उसके लिए सिटीजनशिप के बारे में क्या बोला गया है, उसके लिए भी बोला गया। पढ़ते हैं पहले। Notwithstanding anything in this Article 5 and 6, a person who has after the 1st day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in the Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। Important है, और ये भी याद रखिए कि आर्टिकल 7 जो है वो 5 और 6 में ओवर पावर करता है। अगर प्रोविज़न मैच करते हैं इन दोनों में से कहीं पर भी, 7 को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो 7 विल हैव अ डोमिनेटिंग इफेक्ट। ओके सर। Provided that nothing in this article shall apply to the person who, after having so migrated to the territory now included in the Pakistan, has returned to the territory of India under the permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority by the law, and every such person shall be, for the purpose of the clause 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July। Again I will simplify it for you। इसमें क्या है सर, कट ऑफ डेट है 1st of July 1947। अगर 1st of July 1947 है और कोई इंडिया से पाकिस्तान इससे पहले माइग्रेट कर गया है ना, 1st of March 1947 से पहले अगर माइग्रेट किया है इंडिया से पाकिस्तान पे, तो वो सिटीजन नहीं बन सकता, मार्केट। ओके। अगर सर उसके बाद कोई माइग्रेट किया है और फिर वापस आना चाहता है, तो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड माइग्रेटेड बैक टू इंडिया, ये बन सकता है, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगेन रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसको 6 मंथ्स के लिए ऑर्डिनरीली रिसाइड करना पड़ेगा इंडिया में, ऑर्डिनरीली रिसाइड करना पड़ेगा। ये भी सिंप्लीफाई हो चुका सर। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5, एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया, जैसे कि डिफाइन किया गया था एक्ट ऑफ 1935 में, एंड हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया as defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or the consular representative। इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी जिनके पेरेंट्स बाहर में रिसाइड कर रहे हो, है ना, जिनका जन्म तो हुआ, जिनके पेरेंट्स लोग जो है वो यहाँ पे जन्म लिए थे, बॉर्न इन इंडिया, लेकिन वो आदमी एट प्रेजेंट बाहर में रिसाइड कर रहा है, और वो अगर चाहता है कि मुझे इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो जिस कंट्री में एट प्रेजेंट रह रहा है, जिस भी कंट्री में रह रहा है, वहाँ के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव में जाके ये बताए कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, और वो लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली आर्टिकल डील बाहर में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। ओके सर। अब आर्टिकल 9 किस चीज़ से डील करता है सर? तो इसमें साफ साफ बोलता है कि नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ 6 और आर्टिकल 8 इफ़ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट।
इसका मतलब क्या हुआ सर? ये बोलता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप जाके किसी भी दूसरे कंट्री का सिटीजन ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑन एक्वायरिंग अदर कंट्रीज सिटीजनशिप। बस दिस इज एज सिंपल। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 10 में क्या बात की गई है। इसमें बोला गया है कि कंटिन्यूएशन होता है। अगर आप एक बार सिटीजन बन गए हैं इंडिया के, तो आपको बार बार या किसी भी टाइम इंटरवल के बाद रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू बिकम अ परमानेंट सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, जो भी हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। ओके सर। और लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट इज़ आर्टिकल 11। इसमें क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोल दिया कि देखिए 1950 तक हमने सारा मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया है, एंड बियॉन्ड दिस अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मतलब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप एक्ट बनाइए और एक्ट से गवर्न कीजिए कि कौन सिटीजनशिप पा सकता है, कौन नहीं पा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जानते हैं कि 1955 में पार्लियामेंट हमारी पास करती है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके सर, तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में जो एक्ट पास किया गया था उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें बात किया गया है 5 तरह का सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो 5 तरह से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। सबसे पहला है बाय बर्थ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो बर्थ वाला प्रोविज़न है, इसमें बोला गया है कि अगर पर्सन है ना, वो 26 जनवरी 1950 से पहले है ना, बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1950, अगर इसके बाद अगर जन्म होता है, लेकिन दूसरा कट ऑफ डेट है जुलाई 1 ऑफ 1987, इसके बीच अगर वो आदमी की पैदाइश है इंडिया में, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली वो सिटीजन बन जाता है। ठीक है, उनके पेरेंट्स कहाँ के थे नहीं थे, डजेंट मैटर टू इट, है ना। अब उसके बाद अगर बात किया जाए कि जुलाई के बाद 1987 के बाद हो और दिसंबर 3 2004 इसके बीच अगर किसी की जन्म होती है, तो आइदर ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एट हिज टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है सर, ये भी बात सही है। और अगर इसके भी बाद किसी के जन्म हुआ हो, जो जिनजी जो आज की जनरेशन है, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए कि आइदर अगर दोनों पेरेंट्स अगर सिटीजन हो गए, तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। या ऐसा हो जाए कि एक पेरेंट तो सिटीजन है और दूसरे जो पेरेंट हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। ओके सर, दिस हैज़ बीन सॉर्टेड। उसके बाद आइए रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा कम्बरसम है ना। एक्ट में भी इसको बहुत डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। क्या बोलता है इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप बहुत सारे सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशन में आप अगर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं अपने ऑफिस से, तो ये ऑफिस वाला अगर रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब ये सर कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? ठीक है, तो अगर कोई पर्सन 7 साल तक ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है इंडिया में, है ना, एप्लीकेशन डालने से पहले तो उसको मिल सकता है रजिस्ट्रेशन से, बिल्कुल मिल सकता है सर। या अगर पर्सन जो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि अब पर्सन जिसकी शादी हुई है इंडियन सिटीजन से और वो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, वो अगेन 7 साल तक अगर रजिस्ट्रेशन से पहले डिसाइड कर रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं। यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, दैट इज़ नॉट द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी। ओके फ्रॉम द, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर कि डिसेंट वाले में क्या होता है। ठीक है, तो डिसेंट में बोलते हैं कि अगर इंडिया में जन्म नहीं हुआ है, इंडिया के बाहर जन्म हुआ है, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, और इसमें भी डेट क्या रखा गया है 26 जनवरी 1950, है ना, इसके बाद, लेकिन दूसरा जो डेट है वो रखा हुआ है 10 दिसंबर 1992, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बाय डिसेंट अगर उनके फादर जो हैं वो सिटीजन होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। फादर इज़ द सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर इसके बाद होगा पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 10, 1992, उसको कब सिटीजन कहेंगे? जब आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है सर। और उसके भी बाद 2004 के बाद अगर कोई
बंदा बाद में आउटसाइड इंडिया बॉर्न होता है, शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ। ठीक है, तो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव कॉन्सुलेट में। ठीक है सर। अब देखिए अगला है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का राइट्स जो इस पर अभी बहुत ज़्यादा डिबेट भी चल रहा था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो ये क्या कहता है, इसमें बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू द पर्सन। कब दे सकता है, जब आप क्या कहेंगे कि अगर वो कंट्री जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अगर आपको मना नहीं करता है तो आप भी उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है सर। अगर if he is a citizen of a country, any country, है ना, or he undertakes to renounce the citizenship of the country in the event of the application for the Indian citizenship being accepted, तो इस केस में उसको हम लोग नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं। और एक ये भी है कि 12 मंथ जो है वो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन से पहले वो रिसाइड करना चाहिए यहाँ पे इंडिया में। और एक प्रोविज़न है कि 11 साल के लिए उसको लगातार इंडिया में रहना पड़ता है फॉर दिस प्रोसेस फॉर नेचुरलाइजेशन आउट ऑफ द 14 ईयर्स। 14 ईयर्स में 11 ईयर्स उसको इंडिया में रहना पड़ता है। ओके सर। इसी को अभी एडजस्ट करके 5 ईयर्स कम करके कर दिया गया था, जो अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक एक्ट बन गया था 2019 में। फिर है लास्ट में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कहीं इनकॉर्पोरेशन ऑफ किसी टेरिटरी को करते हैं तो उसके सारे सिटीजन भी अपने इंडियन सिटीजन के मेंबर बन जाते हैं। इसके बारे में भी प्रोविज़न देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक्ट ऑफ 1955। अब सर देखते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट में था क्या प्रोविज़न हल्का सा। तो सबसे पहले तो इसी में अमेंडमेंट किया गया। इसमें बोला गया कि जो माइनॉरिटी हैं फ्रॉम द कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो इंडिया आ चुके थे 2014 से पहले, ठीक है, उनको दी जाएगी। उनमें माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आएंगे, हिंदूज़, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। उनके लिए किया गया कि रिलैक्स कर दिया गया रिक्वायरमेंट फॉर द नेचुरलाइजेशन ऑफ दीज माइग्रेंट्स फ्रॉम 12 ईयर्स टू 6 ईयर्स। जो अभी हम लोग देख रहे थे 12 साल का था टाइम, उसको घटा के 6 साल कर दिया गया था इन पर्टिकुलर स्पेशल केसेस के लिए। यहाँ से देखिएगा आप कुछ मिथ भी जो अराइज हो रहे थे कि सीए जो है वो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन आसाम को अफेक्ट करेगा क्या। तो पीआईबी ने इसको क्लियर किया, बोला कि सीए अप्लाइज टू माइनॉरिटीज़ फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड हैज़ नो कनेक्शन टू द माइनॉरिटीज़ इन द आसाम। ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया। एक और मिथ ये था कि जो एक्ट है विल इनेबल ओवर 1.5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड हिंदू बांग्लादेशीज रिजाइडिंग इन असम टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। और फैक्ट क्या था, नो फॉरेनर विल गेट सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली बाय द एक्ट, माइंड इट। A prescribed authority will scrutinize each application submitted for the citizenship and only those persons complying with the criteria specified in the act will be granted the Indian citizenship. ओके सर। लॉस ऑफ सिटीजनशिप इस एक्ट में कैसे बताया गया है, सबसे पहला है बाई रिनंसिएशन। ठीक है, तो रिनंसिएशन का मतलब क्या हुआ कि मैं खुद जाके अगर ये डिक्लेयर कर दूं कि मुझे नहीं चाहिए इस देश की सिटीजनशिप, तो आप खुद रिनाउंस अगर करेंगे तो आपके साथ साथ आपका अगर माइनर चाइल्ड वगैरह है उसकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन ये प्रोविज़न है कि वॉर के टाइम में आप अगर ऐसा होता है तो आपके एप्लीकेशन को होल्ड किया जा सकता है ना, होल्ड में डाला सकता है। ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है कि अगर टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन कब हो जाएगा कि अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी अगर वॉर के टाइम एप्लीकेशन अगर किया गया है तो इसको विथहोल्ड किया जा सकता है। और लास्टली है डेप्रीवेशन, जिसमें अगर आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो फ्रॉड है या डिसलॉयल रहे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, या 7 साल से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं आप, ठीक है, तो इन केसेस में आपको डिप्राइव किया जा सकता है बिकॉज ऑफ सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये बात करता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। ये प्रोविज़न लॉस ऑफ सिटीजनशिप कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एक्ट में मेंशन है। ओके सर। अब थोड़ा सा एक हल्का सा देखते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, और बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस हमको समझना है, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। ठीक है, तो एनआरआई बेसिकली इंडियन सिटीजन है जो कि ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया और वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है, मतलब ही इज़ इंडियन, वो इंडियन सिटीजन है लेकिन अभी बाहर कमाने गया है या पढ़ने गया है, बाहर रह रहा है। ठीक है, एनआरआई। पीआईओ कौन होते हैं, जिनके एंसेस्टर वॉज एन इंडियन नेशनल एंड हु इज़ करेंटली होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट, वो इंडियन सिटीजन नहीं होता है।
ठीक है। एंड सेम गोज टू OCI, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द एक्ट। तो ये दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होते हैं और ये सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। PIO और OCI के बारे में हमारा जो एक्ट ऑफ 1955 है ये बात करता है। NRI के बारे में ये बात नहीं करता है क्योंकि NRI का कॉन्सेप्ट टैक्सेशन के लिए यूज़ किया गया था, टैक्सेशन के लिए। इसीलिए इंडियन टैक्सेशन एक्ट में इस NRI का प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई 182 से ज़्यादा दिन, 182 डेज से ज़्यादा अगर कोई आउटसाइड इंडिया रहता है तो इन दैट केस उसको NRI बोल सकते हैं हम लोग। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं पॉलिटी से रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम या ईमेल कर सकते हैं, और जनरल डाउट के लिए या आपको डिटेल्स के लिए आप IAS नमा का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन स्कैन दिस QR ऑल्सो टू ज्वाइन द चैनल। ओके सर, थैंक यू।